Dear students, today is very special day for us. And for this day, we have with us Honorable Asha Bahinji. And on behalf of SSB College of Education, MIT College of Education, I welcome Honorable Speaker Asha Bahinji in this program of phonetics. We really welcome you, ma'am, in this program. And in this program is based on pronunciation, that is phonetics, but as a student teacher must have command over pronunciation, he must know about the use of phonetics, and for learning of phonetics, there is need of meditation also. Because dear student, as you know that meditation is the tongue of the soul and the language of our soul. So that today we will have the journey of from soul to soul, and this journey will take place with Honorable Asha Banji. So it is my first duty to introduce Honorable Chief Guest. Honorable Brahmakumari Asha Bhanji, she is Center in charge, Brahmakumaris, Baner, Pune. Honorable Asha Bhanji is MSc Counseling and Spiritual Health. She also did her BA in 2010. And Honorable Speaker, although she is spiritual teacher, but because only for us, she is joined this program, and she is very much well known in counseling and spiritual health. As far as contribution concerned in the field of spiritual services, she is serving spiritual services from 18 plus years in Brahma Kumari's World Spiritual University. Honorable Speaker is very much prompt in counseling and spiritual health. She is always engaged with the lectures, and she likes to deliver lectures on Raj Yoga meditation, spiritual application in corporate life, stress-free living, 7-color healing meditation, value education, positive living, and anger-free life. Dear students, means we are really very much fortunate that we have Honorable Asha Banji with us. And dear student, one more thing I would like to say to here, meditation is the secret of all growth in spiritual life and knowledge. If you want knowledge, then you must follow the spirituality. And there is great connection between you and Almighty God. On behalf of everyone, I really welcome Honorable Asha Bhanji in this program of phonetics. Welcome, ma'am, in this program. Okay, sir. And I request Honorable Speaker, if possible, His screen please मोठी. have a conversation with us in Hindi language. You can use Marathi as well as Hindi. Once again, I welcome you, ma'am, on behalf of everyone. Welcome, ma'am. सर 2 मिनट थोड़ा सेटिंग कर रहे थे इसलिए. Yes, ma'am. Yes, please. यस ओके ओके. ओम About शांति. हाँ जी, ओम शांति. मैं शुरू करती हूँ. आज हम एक अलग टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और खास आपने भी बताया है सर कि राजयोग हमें क्या क्या मदद करता है. जैसे आज हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं और उसमें भी खास जब हमें इंग्लिश सीखना होता है तो उसके लिए हमारे उच्चार, हमारे आचार और हमारे विचार, ये तीनों ही
हमें कैसे हेल्प करते हैं और कैसे हमारी भाषा शैली को हम डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि जब भी कोई भाषा हम बोलते हैं तो भाषा बोलने के लिए सबसे पहले हमारे उच्चार कैसे हैं, कितनी क्लियरिटी है, उस उच्चार में हम देखते हैं कि कहाँ हमें रुकना है, कहाँ हमारी आवाज की ऊंचाई को बढ़ाना है। ये सारा नॉलेज जब हम लेते हैं तो हमारी भाषा शैली बहुत ही उत्कृष्ट बनती है, श्रेष्ठ बनती है। इसलिए इसी भाषा शैली को हमें और आगे कैसे डेवलप करना है, और उसी भाषा शैली को डेवलप करने के लिए ये जो ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा सिखाया जा रहा राजयोग, वो हमें कैसे मदद करता है। तो जैसे हम देखते हैं कि हमारे जो ऋषि मुनि या हमारी भारत की जो प्राचीन संस्कृति है, उसी संस्कृति के अंदर हम देखते हैं खास करके ओम ध्वनि उच्चारित करते हैं। सदियों से ये सुनते आए हैं, सुना भी है, कभी कभी हम ये करते भी हैं। लेकिन जब ये हम ओम ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो इसी ओम ध्वनि से हमारा जो वाइब्रेशन है या प्रकृति में जो वाइब्रेशन फैलता है, उससे एक एनर्जी क्रिएट होती है, और उसी एनर्जी के थ्रू हम अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। इसीलिए तो सदियों से ये परंपरा रही है। जब कोई बोलना सीखते हैं तो भी हम उनके लिए बोलते हैं कि आप ओम का ध्वनि उच्चारण कीजिए। जैसे ओम ध्वनि में 3 शब्द होते हैं, उसमें भी खास से एक अ, एक उ और तीसरा है म। अ का मीनिंग है आचरण, उ का है उच्चारण और म का है मंथन। ये तीनों ही शब्द इसमें आते हैं। इसलिए अध्वनि जब हम बोलते हैं या फिर जब वो निकलता है तो वो दिल से निकलता है, और फिर ऊ का ध्वनि जो है वो हमारे गले से निकलता है, और म जिसका मूल स्थान तालु के मध्य से होता है। इसलिए ये जो ध्वनि हम उच्चारित करते हैं तो उस ध्वनि के द्वारा हमारे अंदर एक एनर्जी क्रिएट होती है, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है, एक अलग ओरा क्रिएट होता है। और इसी ओरा के थ्रू ही हमारे ऋषि मुनियों ने हमको सिखाया है कि ओम ध्वनि का उच्चारण हमें करना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए जब भी कोई मेडिटेशन हम सीखते हैं तो मेडिटेशन की फर्स्ट विधि ही यही है कि खुद को जानना। क्यों? क्योंकि जब कोई लैंग्वेज भी हम सीखते हैं तो उस लैंग्वेज के प्रति ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम बोलते हैं कि जब हमें इंग्लिश सीखना होता है तो हमारे वोकेबलरी बहुत अच्छी चाहिए, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे शब्द चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि बहुत सारे शब्द संग्रह हमारे पास होगा तो हम बहुत अच्छी लैंग्वेज बोल सकते हैं। या फिर जब हम दुनिया के सामने जाते तो हमारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो, इसके लिए हम बोलते हैं कि हमारी भाषा बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो वैसे जब हमको मेडिटेशन इसमें यूज करना है तो कैसे यूज करें हम इस मेडिटेशन को। वैसे मेडिटेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ भाषा उच्चारण के लिए ही ये मेडिटेशन हेल्प करता है, लेकिन भाषा उच्चारण करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या चाहिए? तो सबसे पहले हमारे पास चाहिए कंसंट्रेशन। क्योंकि जब हम स्टेज पे जाते हैं, खास करके जब हम डर जाते हैं, अगर हम डरेंगे तो हम भाषा कैसे बोलेंगे? फिर हम हमारे ये भी कुछ कुछ एक्सपीरियंस रहे हुए हैं बचपन से कि अचानक यदि कोई हमें बोलने के लिए कहे तो हम कहते भी है कि नहीं, मेरे पास बहुत अच्छे शब्द थे, लेकिन जब मैं उस स्टेज पर गया मुझे डर लगा। और जब हमें डर लग जाता है तो हम सब भूल जाते हैं कि क्या बोलना होता है, कैसे शब्द उच्चारण करने होते हैं, हम कंप्लीटली भूल जाते हैं। इसीलिए ये मेडिटेशन हमें क्या ट्रेनिंग देता है? तो मेडिटेशन हमें सबसे पहले हमारे अंदर के डर को निकालता है। कितनी भी बड़ी सभा क्यों ना हो, कितने भी बड़ा मॉब क्यों ना हो, तो हम उस मॉब के सामने, उस सभा के सामने अपनी भाषा को क्लियर बोल सके, क्लियर उनके सामने हम अपना टॉपिक
क्लियर रख सके, उसके लिए हमारे पास सबसे पहली शक्ति चाहिए निर्भयता, और ये निर्भयता आती है मेडिटेशन से। दूसरी बात ये है कि जब हम मेडिटेशन सीख जाएंगे या हम मेडिटेशन करेंगे, तो मेडिटेशन से हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, क्योंकि जब भी कोई टॉपिक क्लियर करना होता है तो हमारे पास चाहिए एकाग्रता, कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन ही नहीं है तो कौन सा शब्द बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कहाँ हमारा आवाज बढ़ाना है, कहाँ हमें थोड़ा धीमा बोलना है, ये सारी जो बातें हैं, ये सारी बातें फिर हमें नहीं आ सकती। इसलिए हमारे पास चाहिए कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन भी मेडिटेशन से आ जाता है। इसलिए इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये राजयोग सिखाया जाता है। इसलिए इस राजयोग को हम कहते हैं सभी योगों का राजा है। कैसे सभी योगों का राजा है? क्योंकि हम दुनिया के अंदर देखते हैं कि लोग ध्यान भी करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, आसन भी करते हैं, बहुत सारी चीजें लोग करते हैं खुद को फिट रखने के लिए, हेल्थ एक्सरसाइज करते हैं। तो हेल्थ के लिए हम करते हैं, लेकिन हमारे माइंड के लिए हम सच में क्या कर रहे हैं? मैं सभी से एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि हम अपने अंदर थोड़ा झांक कर देख ले कि सच में हम अपने मन के लिए कुछ कर रहे हैं। जैसे हम हेल्थ के लिए कर रहे हैं, हेल्थ के लिए हमारा कितना अटेंशन रहता है कि हम ठीक से खाना खाए, प्रोटीन्स हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, वाटर अच्छा हो, ये सारी चीजों का हम कितना ध्यान रखते हैं। या फिर मॉर्निंग वॉकिंग हो, ये सारी चीजें हम करते हैं, लेकिन मन के लिए ऐसी कुछ एक्सरसाइज है? अपने आप से ये छोटा सा क्वेश्चन हम करेंगे, क्योंकि मेडिटेशन की पहली टेक्निक ही है मन को शांत करना। ये मन की बात होती है, मेडिटेशन ये मन की बात होती है। इसलिए हमारे ब्रह्मा कुमारीज में हमको ये सिखाया जाता है कि योग क्या है, मेडिटेशन क्या है। मेडिटेशन माना मानसिक अनुशासन है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि हम दूसरों पर अनुशासन कर सकते हैं, दूसरों को ऑर्डर कर सकते हैं, दूसरों को चलाना हम सीखते हैं, लेकिन खुद के मन को चलाना ये बहुत मुश्किल बात है। इसलिए हम बोलते हैं कभी कभी कि हम मन मेरा मानता नहीं, मन मेरा सुनता नहीं, आज मेरा मन बहुत डिस्टर्ब है, आज मेरा मन कहाँ भी नहीं लग रहा है। तो मन के अंदर कितने कंफ्यूजन्स हैं, और यही मन ऐसा एक गिफ्ट है जो ईश्वर ने हमें प्रदान किया है। जैसे हम बोलते हैं कि ये जो तन है, इस तन को संभालने के लिए, ये तन को भी हम ईश्वर की अमानत मानते हैं। जब कोई हमें पूछते हैं आपका क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो हम उत्तर यही देते हैं कि ईश्वर की कृपा से सब ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन कभी आपने ये भी तो बात सोचने वाली है कि ये जो मन है, इतना अच्छा मन जो भगवान ने हमें गिफ्ट के रूप में दिया है, इस मन का यूज हम कैसे करते हैं? मैं तो हमेशा बताती रहती हूँ कि जब हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी होती है तो हम उसका भी यूज बहुत ध्यान से करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है जब हम ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हमें ही भरना पड़ता है। जब हम खाना बनाते हैं, खास करके महिला माताएं, तो हम देखते हैं कि उसमें भी हमारा जो गैस होता है, जब हमें जरूरत है तभी हम उसको ऑफ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इसका भी बिल हमें भरना पड़ता है। लेकिन दुख इस बात का है कि जो मन ईश्वर ने हमें अमानत के रूप में दिया है, गिफ्ट के रूप में दिया है, क्या इस मन का यूज हम उतना ही ध्यान से करते हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी का करते हैं, जैसे गैस का करते हैं? हमारा मन, हम कहाँ भी किधर भी वो भटकता है तो भी हम उसका ध्यान नहीं रखते हैं। फिर इसीलिए हम बोलते हैं कि मन नहीं लगता है, मन में कॉन्फिडेंस नहीं है, मन एकाग्र नहीं होता है, मन में बहुत सारी बातें आते रहती है। ये मन की कंप्लेंट्स है। तो जब हम मेडिटेशन करना स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है हमारी ये मन की कंप्लेंट्स खत्म हो जाएगी और हमारा माइंड कंप्लीटली स्टेबल बन जाएगा। इसलिए कहते हैं कि मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन मन को स्थिर करने की
एक कला है, एक विधि है, और इस विधि को यदि हम अपनाएंगे तो हमारे जीवन में हम बहुत महान बन सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब विचारों में परिवर्तन आएगा तब उच्चारण में भी परिवर्तन अवश्य आ जाता है। इसलिए सबसे पहले परिवर्तन हमें करना है अपने विचारों में। तो हमारे विचार भी इतने प्रगल्भ होने चाहिए, क्योंकि आज हम देखते हैं और साइंस भी इस बात को मानता है कि ज्यादातर विचार हम नेगेटिव करते हैं, नकारात्मक करते हैं। नकारात्मक विचारों के कारण हमारी मन की ऊर्जा लॉस होती है, कम 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 होती जाती है। इसलिए हमारे मन के अंदर बहुत अच्छे अच्छे और हाई थिंकिंग, क्वालिफाइड विचार, क्वालिटी वाले विचारों को हमें क्रिएट करना है। और ये क्रिएशन हम तब कर सकेंगे जब हम थोड़ा सा अटेंशन अपने मन के ऊपर देंगे, क्योंकि मन ही सभी बातों का मूल है, केंद्र स्थान है, सेंटर पॉइंट है। और इसी मन के प्रति हम कितना अवेयर है, ये अपने आप को पूछना है। क्योंकि हम सभी को संभाल सकते हैं, सभी के तरफ ध्यान दे सकते हैं, लेकिन जब खुद के मन की बात आती है तो बोलते मैं नहीं संभाल सकता, मैं नहीं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन ये ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में ये मेडिटेशन इसीलिए सिखाया जाता है कि हम अपने मन को संभालना सीख गए, सीख जाएंगे तो हम सारे विश्व को संभालना सीख जाएंगे। इसलिए हमारे भगवत गीता के अंदर भी कहा हुआ है, मन जीते जगत जीते। तो मन मन को जीतना कितना मुश्किल लगता है कभी कभी। कभी कभी कुछ कुछ बातें ऐसी होती है कि मन मानता नहीं है, लेकिन जब हम मेडिटेशन करना सीख जाएंगे, ध्यान धारणा करना सीख जाएंगे, तो हो सकता है अपना मन भी बेस्ट फ्रेंड बनता है। इसलिए मन हमारा फ्रेंड है। इस फ्रेंड को भी हमें कैसे चलाना है, कैसे यूज करना है, उसका एक टेक्निक माना मेडिटेशन है। दूसरी बात ये है कि मेडिटेशन क्या है। मेडिटेशन एक ऐसी विधि है, एक ऐसी तकनीक है जिस मेडिटेशन के द्वारा हम ईश्वर परमात्मा से मिल सकते हैं। कम्युनिकेशन, ऐसे कहते हैं ना कि मिलना। जब किसी व्यक्ति से मिलने के लिए हम आगे बढ़ते हैं या फिर उसको फोन करते हैं या फिर घर से बाहर निकलते हैं, और वही व्यक्ति जब हमारे सामने आता है या हमें मिलता है या उसका कॉल हमें आता है, तो हम बोलते क्या योग है, कितना अच्छा योग है। बस हमने अभी आपको याद किया और आपका फोन आया या आप हमें मिलने आ गए, तो हम उसको योग बोलते हैं, योगा योग बोलते हैं। ऐसे ही तो बोलते हैं ना। तो योग माना क्या है? मिलन, मनोमिलन। ऐसे दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि दो चीजें मिल सकती हैं। जैसे उसको कहते हैं भौतिक योगा। भौतिक योगा में ऐसे कहा जाता है कि जब हम दूध और दूध में थोड़ा सा दही डाल देंगे तो उसका एक अलग चीज बनता है जिसको हम श्रीखंड भी बोल सकते हैं। तो जब दो चीजें इकट्ठा आ जाती है तो तीसरी वस्तु क्रिएट होती है, उसको बोलते हैं भौतिक योग। तो जब दो चीजें मिल सकती है, दो मन मिल सकते हैं, तो हमारी एक शक्ति है हमारे अंदर, वो शक्ति ईश्वर से मिलना, उसको ही योग कहा जाता है। इसलिए इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में हमको सिखाया जाता है कि योग माना परमात्मा से संबंध जोड़ना, ईश्वर से कनेक्ट होना। क्यों? क्योंकि जब ईश्वर से कनेक्टिविटी हमारी बढ़ जाती है तो हमारे अंदर कई सारी शक्तियों की प्राप्ति होती है। इसलिए कभी कभी हम कुछ कुछ चीजों के लिए बोलते भी ये गॉड गिफ्ट है। कोई कोई जन्मते ही अच्छा बोलते हैं, कोई कोई होते ही जन्मते ही उनको भाषण करना आता है, कोई कोई होते हैं जन्मते ही सच बोलते हैं, कोई कोई होते जन्मते ही उनका कुछ कुछ संस्कार होते हैं, जो रॉयल्टी होती है, मैनर्स अच्छे होते हैं, तो हम बोलते ये गॉड गिफ्ट है। तो ऐसे अगर कोई चीज हमारे में कमी भी है, समझो कभी कभी जब हम ये लैंग्वेज सीखना कोशिश करते हैं, तो कभी कभी हमारा कॉन्फिडेंस कम होता है, विल पावर कम होती है। तो ऐसी बातों में जब हम परमात्मा को याद करेंगे, ईश्वर को याद करेंगे, तो हो सकता है वो शक्ति हमें ईश्वर प्रदान कर सकता है। इसलिए इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में कहा जाता है कि योग माना मिलना। जैसे हम व्यक्तियों से मिलते हैं, ऐसे 2 मिनट, 1 मिनट, 1 सेकंड हम ईश्वर से भी मिल सकते हैं। इसलिए मेडिटेशन बहुत टॉप की विधि है। इसलिए कहा जाता है कि जहाँ साइंस की शक्ति भी
खत्म हो जाती है, वहां स्पिरिचुअल शक्ति काम करती है। तो स्पिरिचुअल शक्ति क्या है? और उसी स्पिरिचुअल शक्ति को जानना माना मेडिटेशन है। क्योंकि हम ज्यादातर उसके बारे में बहुत कम जानते हैं। फिर योग ऐसा है, एक विधि है जो टूटे रिश्तों को पुनर्जीवित कर सकती है। क्योंकि हमारे जो रिश्ते हैं वो इस दुनिया से बहुत सारे रिश्ते हैं, बहुतों के साथ हमने अपने रिश्ते जोड़े हैं, लेकिन हमारा जो रिश्ता है वो और भी है, वो है ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ। इसलिए तो हम कहते हैं कि त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो ऐसे क्यों कहते हैं हम? क्योंकि जरूर परमेश्वर से, परमात्मा से भी हमारा कोई रिश्ता है, और उसी रिश्ते को हमें पुनर्जीवित करना है। क्योंकि चलते 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 वो रिश्ता भी हमारा खत्म हो गया है, और वो रिश्ता जब खत्म हो गया है तो हमारे अंदर डर आने लगा, हमारे अंदर कुछ कुछ बातों का भय निर्माण हुआ है। और आज हम देखते हैं, आज की सिचुएशन यदि देखी जाएगी दुनिया के अंदर, तो सारी जो लोग हैं डर के जी रहे, डर डर के जी रहे, कुछ ना कुछ डर हर एक के अंदर है। इसलिए हमें भी जब अपने जीवन में बहुत अच्छा सा सुख से, शांति से जीना है, तो हमें भी अपना संबंध ईश्वर के साथ जोड़ना बहुत 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 जरूरी है। ऐसे नहीं कि मेडिटेशन माना हम चुप बैठे, शांत बैठे, मन को जीरो कर दे, कोई संकल्प ही हमारे अंदर न चले, ऐसे नहीं है। क्योंकि मन एक ऐसी शक्ति है जो बिना सोचे रह ही नहीं सकती। कुछ ना कुछ वो सोचती जरूर है, या तो अच्छा सोचेगी, या तो बुरा सोचेगी, या तो पास्ट का सोचेगी, या तो प्रेजेंट का सोचेगी, तो सोचती जरूर है। तो इसी शक्ति को हम थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी की ओर ले चले, या फिर इसी के अंदर जो विचार क्रिएट होते हैं, जो संकल्प क्रिएट होते हैं, उस क्रिएशन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान हमें देना है। क्योंकि जब कोई नई चीज हमें सीखनी होती है, तो वो सीखने के लिए पहले हमारे अंदर एक संकल्प आता है, आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा पता नहीं। ऐसे बहुत सारे संकल्प हमारे अंदर आते हैं। तो ऐसे संकल्प आते 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 फिर ज्यादातर हम देखते हैं कि हमारे अंदर डर वाले विचार ज्यादा क्रिएट होते हैं, नकारात्मक विचार ज्यादा क्रिएट होते हैं। इसीलिए जब हम ये मेडिटेशन सीखेंगे, स्टार्ट करेंगे, या फिर हमारे जीवन में हम इस विधि को अपनाएंगे, तो हमारे अंदर ये संकल्प ही नहीं आएगा, मैं करूंगा कि नहीं करूंगा, मैं करूंगी कि नहीं करूंगी, ये संकल्प ही नहीं आएगा। बस हमारे अंदर यही एक पॉजिटिव संकल्प क्रिएट होगा कि हाँ मुझे आएगा और मुझे ही करना है, मेरे से बेहतरीन इसे कोई कर ही नहीं सकता, मेरे से अच्छा कोई कर ही नहीं सकता, मैं सबसे अच्छा कर सकता हूँ। ये जो पॉजिटिव संकल्प है, ये हमें बहुत ऊर्जा देगा, बहुत एनर्जी देगा। और इस एनर्जी के साथ जब हम कहाँ भी जाकर के अपना परफॉर्मेंस देंगे, तो हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा, बहुत माना बहुत बढ़िया हो सकता है। इसलिए हमारी पॉजिटिविटी को बढ़ाता है ये राजयोगा मेडिटेशन। और जब पॉजिटिव ओरा हमारे आजू बाजू में बन जाता है, तो ये पॉजिटिव ओरा हमें बहुत बहुत आगे तरक्की की ओर ले जाता है। इसलिए जितने भी बड़े बड़े लोग होकर गए, जैसे उसमें भी खास उदाहरण दिया जाता है तो स्वामी विवेकानंद जी का, तो कहते हैं ना कि वे भी एक राजयोगी थे। उनकी कहानी में ये बताया जाता है कि जब उन्हें उनको ये सीखना था, राजयोग मेडिटेशन उनको जब सीखना था, तो अपने गुरु के पास गए। उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। जब वो उनके पास गए, और जैसे ही वो गए, तो कहा हुआ है ऐसे कहानी में कि उनके गुरु अंदर थे, और उन्होंने दरवाजे पर ऐसे थपकी लगाई, आवाज दिया, तो अंदर से आवाज आया, आप कौन हो? तो बहुत ही सुंदर उत्तर विवेकानंद जी ने यहाँ पे दिया कि उन्होंने कहा, यही तो ढूंढने के लिए मैं आपके पास आया हूँ गुरु जी। तो इसका उत्तर क्या है, यही मुझे जानना है। और कहते हैं कि जब विवेकानंद जी ने इसका उत्तर जाना, तो उनका राजयोग वहीं से आरंभ हुआ है। तो आज हमारे जीवन में हमें भी ये जानना बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूँ। क्योंकि हम
नेगेटिव बातों को ही ज्यादा बोलते हैं। मेरे में ये नहीं है, मेरे में वो नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता हूँ, मुझे आता ही नहीं है, मेरा मदर टंग ही ऐसा है, मेरा ये ऐसा है। हमारे पास बहुत सारे उत्तर होते हैं न आने के, पर आने के भी उत्तर हमारे पास होने चाहिए। क्यों नहीं आएगा? मुझे नहीं आएगा तो और किसको आएगा? अगर मैं कोशिश करूंगा, कोशिश करूंगी, तो हर चीज मुझे आ सकती है। तो ये जो हमारे पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उस कॉन्फिडेंस की लेवल को ये राजयोग बढ़ाता है। और बहुत माना उसके बहुत पावरफुल एक एग्जाम्पल हमारे ब्रह्मा कुमारीज में है। जैसे हमारी दादी जानकी जी थे, वो तो सिर्फ चौथी पढ़े लिखे थे, लेकिन जब वो इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में आए, उन्होंने जब ये मेडिटेशन सीखा, तो वो हमारी दादी जी लंदन में जाके उन्होंने सेवाएं की। फॉरेन में जाकर के उन्होंने इतनी सेवाएं की, इतना स्पीच उन्होंने वहां के लोगों को दिया, जो बहुत सारे लोग राजयोग सीख गए। और इतना मेडिटेशन का कॉन्फिडेंस उनके पास था, एक्सपीरियंस उनके पास था, तब उनको स्टेबल माइंड ऑफ लेडी ये पुरस्कार मिला था। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स है, कई सारे एग्जाम्पल्स है कि जिन्होंने अपने जीवन में राजयोग को अपनाया, मेडिटेशन को अपनाया, और मेडिटेशन के जरिए वो अपने जीवन में बहुत उच्चतम शिखर पर पहुंच गए हैं। इसलिए आज भी हमें लैंग्वेज तो सीखना ही है, और उसी लैंग्वेज को सीखने के लिए, उसके उच्चारण के लिए खास आज का सेशन अरेंज किया हुआ है। इसीलिए इसी सेशन के अंदर आज हम यही सीखेंगे कि हम अपने अंदर की शक्ति को, इनर ब्यूटी को कैसे बढ़ाएंगे। जैसे बोलते हैं कि जब हम कहाँ जाते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज भी ठीक होनी चाहिए। जैसे बॉडी लैंग्वेज ठीक होनी चाहिए, ऐसे एक हमारे अंदर एक ऊर्जा है, एक सोल है, एक शक्ति है। तो उस शक्ति की भी एक अपनी सुंदरता है, और उसी सुंदरता को यदि हम बढ़ाएंगे तो हमारी अंदर की सुंदरता से बाहरी सुंदरता ऑटोमेटिक दिखती है। इसलिए परमात्मा इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में हमें यही क्लियर कराते हैं कि पहले हम खुद को जाने, खुद की शक्ति को पहचाने। हमारे पास बहुत सारी शक्तियां हैं, बहुत बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि चलते 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 हम अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं। तो ये राजयोग एक हमें बहुत मदद करता है कि सोई हुई शक्तियों को जगाता है। इसलिए बोलते हैं ना कि सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी एनर्जी है, बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन हम सबकॉन्शियस माइंड तक कभी पहुंचते ही नहीं है। इसलिए इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में ये जो मेडिटेशन सिखाया जाता है, इस मेडिटेशन में हमको यही ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बढ़ाए। तो सबकॉन्शियस माइंड माना हम आत्मा है, एक ऊर्जा है, क्योंकि खुद का ज्ञान भी बहुत जरूरी होता है। जैसे कोई लैंग्वेज हम सीखते हैं तो लैंग्वेज का ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, उसके लिए बहुत सारे डिक्शनरीज हम लेके बैठते हैं, बहुत सारे शब्दों को हम पढ़ते हैं, ध्यान में रखते हैं। तो ये तो करना ही है हमें, क्योंकि जब तक ये चीजें हम नहीं करेंगे तब तक हम कोई भी भाषा नहीं सीख पाएंगे। और जब कोई भाषा हम सीखते हैं तो उस भाषा के प्रति अंदर का प्यार हो, दिल से जो भी करना है दिल से करना है। यदि हम दिल से करने की कोशिश करेंगे तो हम कोई भी चीज कर सकते, कोई भी चीज, कोई भी चीज हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। तो उसके लिए हम कभी मन में ये नहीं सोचे कि हमें नहीं आएगा या हम नहीं कर पाएंगे। हम कर पाएंगे, कर सकते हैं। उतनी शक्ति, उतनी इनर पावर हमारे पास है, और बस उसी पावर को आज हमें बढ़ाना है। वैसे तो आप सब जो सुन रहे हैं, आप सबको ये सब बातें आती है, आप बहुत अच्छे माना ये जो लैंग्वेज है आप सीखने की माना कोशिश कर रहे हैं, और आपको ये लैंग्वेज आएगी। बस हमें थोड़ा सा अपने अंदर की इनर पावर को बढ़ाना है, क्योंकि हम सिर्फ पढ़ने वाले लोग नहीं हैं, हम पढ़ाने वाले हैं, हम टीचर्स हैं, हम अनेकों को पढ़ाने वाले हैं। तो जब हम अनेकों को पढ़ाना ही हमारा रोल है क्या? नहीं। तो ऐसे कहा जाता है कि हर स्टूडेंट को अपनी क्वालिटी के अनुसार जान करके उसको आसान राह तक ले जाना, ये बेस्ट टीचर का एक काम होता है। इसीलिए हर हर स्टूडेंट के अंदर एक क्वालिटी होती है, हर एक के अंदर।
हर एक के अंदर उसी क्वालिटी को जानकर उसी क्वालिटी को बढ़ाना। भले कुछ कुछ चीजें कभी कभी मुश्किल भी लगती है, नहीं लगते ऐसे नहीं है, लेकिन उस मुश्किल को भी आसान कैसे करें, इजी वे से हम कैसे कर सकते हैं, ये टेक्निक सिखाना ये टीचर का पहला कर्तव्य होता है। इसलिए मैं जानती हूँ कि आप सब टीचर हो और आप सबका ये रोल है, इसलिए अपने स्टूडेंट को भी हम न्यूनेस के तरफ ले जाएं, नवीनता के तरफ ले जाएं। कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, क्योंकि मुश्किल बोलेंगे तो डर क्रिएट होगा, टफ बोलेंगे तो फिर बोलेंगे हम नहीं कर सकते। लेकिन उनके अंदर जो चीज उनको मुश्किल लग रही है, जो टफ लग रही है, तो उस चीज को हम कैसे और इजी करें, और इजी वे से कैसे ले जाएं, और इजी तरीका क्या हो सकता है, उस तरीके को ढूंढे और ढूंढ करके हम वो स्टूडेंट के अंदर क्रिएट करें। तो हर स्टूडेंट भी बहुत टॉप का स्टूडेंट बन सकता है, बहुत ऊंचाई तक वो भी स्टूडेंट पहुंच सकता है। इसलिए हमारा वो सबसे पहला कर्तव्य है। इसलिए ये मेडिटेशन जब हमें सीखना होता है तो मेडिटेशन के लिए हम पहले खुद को जाने, खुद की शक्ति को जाने, क्योंकि हमारे अंदर भी बहुत सारी शक्तियां हैं। और जैसे हम कर्म करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, जो जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं, तो हर एक्टिविटीज करते समय हम खुद को एक बॉडी फील करते हैं। जब हमें कोई हमारा नाम पूछता है तो हम आसानी से बोलते मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है, मेरा पोजीशन ये है, मेरा गांव ये है, मेरा एड्रेस ये है, तब हम मेरा शब्द यूज करते हैं। लेकिन जब खुद की बात आती है तो बोलते मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसी करती हूँ, मैं ये हूँ, मैं सीख रही हूँ, मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ, मैं कोर्स कर रही हूँ, तब हम मैं शब्द यूज करते हैं। और जब बॉडी की कनेक्टेड कोई बातें आती है तो बोलते हैं मेरा। जैसे कोई मेरा कभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, डाउन हो जाती है, बोलते आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। या फिर हम बोलते ये मेरा हाथ है, मैं हाथ नहीं बोलते, मेरी बॉडी बोलते, मैं बॉडी हूँ ऐसे नहीं बोलते। तो ये दो शब्द हम यूज करते, एक मैं और दूसरा मेरा। तो ये मेरा 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 कहने वाली मैं कौन हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है। ये क्यों मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि इसी से हमारा मेडिटेशन स्टार्ट होता है। और हमें यदि मेडिटेशन सीखना है तो मेडिटेशन की पहली विधि है खुद को जानना। क्योंकि हम बाह्य बॉडी को जानते, बाह्य सारे पार्ट्स को हम जानते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक ऐसी ब्यूटी है, एक ऐसी शक्ति है जो बहुत ही सुंदर है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जिसको गीता के अंदर भी कहा हुआ है कि उसको कोई मार नहीं सकता, उसको कोई जला नहीं सकता, आग उसको जला नहीं सकती, पानी उसको गीला नहीं कर सकता, हवा उसको सुखा नहीं सकती, और कोई भी अस्त्र शस्त्र उसे काट नहीं सकता। वो ब्यूटीफुल एनर्जी, वो सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी मैं हूं। क्योंकि इस बॉडी के बारे में हम बोलते कि ये तो विनाशी चीज है, इसलिए जब कोई व्यक्ति हमारे में से चला जाता है तो हम बोलते चली गई, वो शक्ति चली गई, प्राण चला गया। लेकिन जिस बॉडी के साथ हमारा एक रिलेशन था, एक संबंध था, वो बॉडी तो हमारे सामने होती है। उसको देखते हुए भी हम बोलते हैं कि अब ये चीज कोई काम की नहीं रही। फिर काम की कौन सी ऐसी चीज थी जो चली गई? और वो जब चली जाती है तो ये बॉडी की वैल्यू टोटली जीरो हो जाती है, टोटली जीरो। जब हमारे अंदर वो ऊर्जा है, वो सोल है, वो प्राण है, तब हमें कोई भी हाय हेलो गुड मॉर्निंग करता है। लेकिन जैसे ही हमारे अंदर की वो एक ऊर्जा, वो सोल चली जाती है, तो हमारे पास भी आने के लिए लोग डरते हैं। तो हम देखते हैं ये सिचुएशन की, फिर बोलते नहीं जाने दो, अब ये कोई काम की नहीं है। तो ऐसी कौन सी शक्ति हमारे पास है जो बहुत वैल्यूबल है, बहुत कीमती है? और सारा दिन हम बोलते मैं कितनी बार बोलते हैं, ये मैं करता हूँ, वो मैं करता हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, कितनी बार हम ये शब्द बोलते हैं। लेकिन
आश्चर्य इस बात का है कि इस मैं को हम जाने, इस मैं को हम फील करें। जब हम इसको फील करेंगे, यही मेडिटेशन है। मेडिटेशन कोई अलग चीज नहीं है। ऐसे नहीं है कि मेडिटेशन के लिए हमें सब छोड़ना पड़ेगा। कुछ कुछ लोगों के मन में ये भी एक डर बैठा हुआ होता है कि मेडिटेशन हमारे बस की बात नहीं है। मेडिटेशन बड़े बड़े जो वैरागी है, ऋषि मुनि है, तपस्वी है, वो कर सकते हैं, हम तो कॉमन लोग हैं, हम नहीं कर सकते। ऐसे नहीं है, हर कोई मेडिटेशन कर सकता है। छोटेपन से लेकर बुजुर्ग व्यक्ति तक हर कोई ये मेडिटेशन कर सकता है, क्योंकि मेडिटेशन माना खुद को फील करना। हमारे अंदर जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को हम फील करें, क्योंकि ये जो ऊर्जा है उसको हम कहते हैं आत्मा, सोल। और ये जो सोल है, इसके अंदर ही 3 शक्तियां है। सबसे पहला है मन, सेकंड है बुद्धि, थर्ड है संस्कार। इसलिए मन, बुद्धि और संस्कार से वो शक्ति बनी है, और वही शक्ति पूरे शरीर को चलाती है। इसीलिए तो हम बोलते मैं देखता हूं, मैं देखती हूं, मैं सुनती हूं। कान नहीं सुन रहे हैं, वो ऊर्जा सुन रही, वो ऊर्जा फील कर रही है। हम कभी कभी बोलते हैं मैं बोलता हूं, तो मुख नहीं बोल रहा है, मुख द्वारा बोलने वाली कोई और शक्ति है, कोई और ऊर्जा है। इसलिए हम बोलते हैं मैं बोलती हूँ। ये नहीं बोलते मेरा मुख बोलता है, ऐसे कभी यूज नहीं करते हम। जब हम बीमार होते बोलते आज मैं बीमार हूं, मेरी प्रकृति ठीक नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हम शरीर के बारे में ये सारे शब्द बोलते हैं। इसलिए ये जो वो सोल है, जो ऊर्जा है, ये बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है। वो अपने आप में ओरिजिनल में ही बहुत अच्छी है। इसलिए जब से हमारा जन्म हुआ है, तब से ही हम दुखी नहीं थे, तब से ही हम डिस्टर्ब नहीं थे, तब से ही हम डिप्रेशन में नहीं थे, तब से हमारे पास कोई व्यसन नहीं था। हमारा जब जन्म हुआ था, तब हम कैसे थे? बहुत प्योर, बहुत सात्विक, बहुत शुद्ध एक सोल थे। फिर बाद में हमारा नामकरण हुआ है। तो हमारे अंदर एक ओरिजिनल ऊर्जा है, और उसी ओरिजिनल ऊर्जा के अंदर सारे वैल्यूज है, सारे वैल्यूज है। उसमें पीस भी है, उसमें प्यार भी है, उसमें सुकून भी है, उसमें रिलैक्सेशन भी है। पर चलते 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 जैसे हम एक्टिविटीज में आने लगे, या फिर औरों को देखने लगे, तो औरों के कंपटीशन में हम अपने आप को भूल गए। इसलिए हम दूसरों को कंपेयर करना सीख गए। भाई उनको आता है, मुझे नहीं आता है, उनके पास वो चीज है, मेरे पास नहीं है, उनको ये है, मेरे पास नहीं है। तो ऐसे हम दूसरों को देखते 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 अंदर की ब्यूटी को हम भूल गए। इसलिए मेडिटेशन एक बहुत बड़ा रोल हमारे जिंदगी में निभाता है, अहम भूमिका निभाता है। वह अपने अंदर की ब्यूटी को वो बढ़ाता है, जागृत करता है। इसलिए मेडिटेशन के द्वारा ही हमें अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करना होता है, क्योंकि अंदर भी एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, और उसी शक्ति को हमें फील करना है। उसको देख नहीं सकते, क्योंकि वो अति सूक्ष्म है, जस्ट पॉइंट ऑफ लाइट है, जस्ट एक ऊर्जा है। और वो कहाँ रहती है? वो हमारे यहाँ रहती है, 2 भुवयों के बीच में रहती है। इसलिए जब हम बोलते हैं कि हाय मेरा भाग्य, या फिर हम बोलते पता नहीं तकदीर में क्या लिखा है, पता नहीं मेरे नसीब में क्या है, तो जब हम नसीब, तकदीर, लक, भाग्य ये सारे शब्द यूज करते हैं, तो हमारा हाथ यहाँ पे आता है। इसलिए हमारे अंदर जो ऊर्जा है, वो यहाँ बैठ के पूरे बॉडी को चलाती है। आंखों द्वारा देखती है, कानों द्वारा सुनती है, मुख द्वारा बोलती है, और हाथ और पांव से हम कर्म करते हैं। इसलिए कर्म करने वाली एक चैतन्य शक्ति है, और उसी चैतन्य शक्ति को हमें फील करना, और उस फीलिंग को ही कहते हैं राजयोग मेडिटेशन। फिर ऐसा होता है कि कभी कभी हमारी कैपेसिटी कम हो जाती है, तो हमारी कैपेसिटी को हम बढ़ाने के लिए किसी और की हम हेल्प लेते हैं। जैसे हमें कुछ सीखना होता है, इस दुनिया की कुछ नॉलेज, कुछ टेक्निक सीखने होते हैं, तो हम एक बेस्ट टीचर ढूंढते हैं, बेस्ट
गुरु ढूंढते हैं, उनके पास हम जाते हैं, और उनके पास हम जब जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें हमको मिलती है, उनसे मिलती है ना, तभी तो हम बोलते हैं कि नहीं, हमारे लाइफ में हमें टीचर अच्छा मिला है, गुरु अच्छा मिला है, और उनके द्वारा हम इतना एक्सपर्ट बने हैं। ऐसे ही हमारे जो आत्मा है, सोल है, उसके अंदर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, उसके अंदर की शांति को बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, हमें भी हेल्प करने के लिए परमात्मा है, ईश्वर है, और वो ईश्वर निराकार है। इसीलिए जब हम किसी चीज में दुखी होते हैं, हर्ट होते हैं, या फिर हमें कोई रास्ता नहीं दिखता है, तो बोलते हैं, हे ईश्वर, आप ही हो, आप ही तो हमें मदद कर सकते हो, तो हम उसको याद करते हैं। हम क्यों उसको याद करते हैं? तो जरूर उनका और हमारा कुछ आपसी रिलेशन है, कनेक्शन है। तो मेडिटेशन में हम अपना रिलेशन, अपना कनेक्शन उस सुप्रीम सोल के साथ जोड़ें, उस परमात्मा के साथ जोड़ेंगे। जब परमात्मा के साथ हम अपना संबंध जोड़ते हैं, तो हमारी सोई हुई शक्तियां ऑटोमेटिक जग जाती है, क्योंकि मेडिटेशन से हम कंप्लीटली रिलैक्स होते हैं, टोटल रिलैक्स। जब माइंड रिलैक्स बन जाता है, तो अंदर की शक्ति ऑटोमेटिक जागृत होती है हमारे पास सब शक्तियां हैं, सब काम हम कर सकते हैं, कोई भी चीज हमारे लिए मुश्किल नहीं है, हम सब कर सकते हैं। पर वो करने के लिए हमें मेडिटेशन करना बहुत 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 जरूरी है। इसलिए ये मेडिटेशन माना कोई आसन नहीं है, प्राणायाम नहीं है, योगासन नहीं है, पर ये मेडिटेशन है अपने भटके हुए मन को परमात्मा में लगाना, परमात्मा को अर्पित करना, और अपने माइंड को कंप्लीटली शांत बनाना, ये है मेडिटेशन। इसलिए मेडिटेशन टफ चीज नहीं है, आसान है। बस हमें कुछ कुछ टेक्निक उसके सीखने पड़ेंगे, और वो हम रोज कर सकते हैं, रोज कर सकते हैं, एकदम इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। हमेशा मैं एग्जांपल देती हूँ कि जैसे हम सवेरे उठते हैं, उठते बराबर हमारे कुछ प्लानिंग्स होते हैं कि आज ये करना है, आज ये करना है, आज यहाँ जाना है, आज का ये सेशन है, ये हमारे प्लानिंग्स होते हैं। तो उसी प्लानिंग अनुसार हम वर्क करते हैं, उस अनुसार हमारा एक अपना शेड्यूल बनाते हैं। लेकिन जैसे हम सवेरे उठते हैं, तो क्या उठते बराबर हम ईश्वर का थैंक्स करते हैं? नहीं। तो ईश्वर का थैंक्स करना चाहिए, ये भी एक मेडिटेशन है। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जिसने हमें उठाया है, नींद से जगाया है, तो उसका थैंक्स क्यों नहीं करना चाहिए? यदि एक आध दिन वो हमको उठाएगा ही नहीं, तो हम अपना शेड्यूल नहीं कर पाएंगे, हम अपना वर्क नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब हम उठते हैं, जब हमारी आंखें खुलती है, खुलते बराबर जस्ट एक सेकेंड के लिए हम उसको कहे, थैंक्स ओ परमात्मा, है ईश्वर, ओ गॉड फादर, थैंक्स, आपने मुझे जगाया, और एक नया दिन आपने मुझे मेरे लाइफ में दिया, ताकि मैं कुछ कर सकूं। आज का दिन मेरा बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हे परमेश्वर, आप मेरे साथ हो, आपकी शक्ति मेरे साथ है। इतना भी हम कहे सवेरे उठते बराबर, ये भी एक मेडिटेशन है। ऐसा नहीं कि मेडिटेशन के लिए आप पूरा अपना काम धंधा छोड़ दो, आपका वर्क छोड़ दो और आप बैठ जाओ, ऐसे नहीं है। हम उसको आसानी से चलते फिरते, जब भी हमको टाइम मिले, जब हम फ्री होते हैं, तब हम जस्ट मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं। बीच बीच में जब भी फ्री होंगे, तब जब हम रिलैक्स बैठते, कभी कभी बैठते हैं दिन में, समझो 1 घंटा काम किया, फिर 1 मिनट हम बैठते, बोलते नहीं चलो थोड़ा हम बैठ जाते। तो जब हम बैठ जाते, तो बस हम बैठे बैठे उसके साथ कनेक्शन जोड़ दें, परमात्मा के साथ। तो हमारा कनेक्शन जब उसके उस ईश्वर के साथ जुड़ जाता है, एक अनोखी एनर्जी को हम फील करते हैं, और जब वो एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है, तो हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। और वो एनर्जी न केवल हम तक रहेगी, लेकिन हमारे द्वारा वो अनेकों को मिल सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति का एक ओरा होता है, एक हर व्यक्ति का होता है। इसलिए जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, तो हमें मिलके बहुत अच्छा लगता है, और कोई व्यक्ति से हम मिलते हैं तो बोलते पता नहीं आज किसकी शक्ल देखी। तो जैसे जिसके विचार होते हैं, वैसे उसका ओरा होता है।
और जैसे जिसके विचार होते हैं वैसे उसके उच्चार होते हैं। इसलिए अगर अंदर के विचार अच्छे होंगे तो बाहर के उच्चार भी बहुत अच्छे होंगे। इसलिए हम अपने माइंड के ऊपर पूरा फोकस करेंगे, मन के ऊपर हम पूरा कंसंट्रेट होंगे कि अपने मन में क्या चल रहा है, इस मन को हम कैसे बुरी बातों से बचाएं। मेडिटेशन हमें ये भी सिखाते कि कुछ कुछ बुरी बातों से हम अपने आप को बचाएं, सेफ रखें। क्योंकि जब हम बुरी बातों से बच जाते हैं तो हमारा माइंड स्ट्रांग बन जाता है, पॉजिटिव बनता है, शक्तिशाली बनता है। और यही माइंड परमात्मा ने हमें गिफ्ट के रूप में दिया है। तो इस माइंड की केयर करना, इस माइंड को ठीक रखना, इस माइंड को संभालना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए हम जो भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं वो हमें आएगा ही। क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन से हमारी वो सारी शक्तियां बढ़ती हैं। और इतनी सारी शक्तियां आज हमारे पास है, बस हमें उस शक्तियों को जागृत करना है, अवेयरनेस के प्रति ले जाना है। इसलिए जब हमारा माइंड शांत होता है तो हम कंप्लीटली तनाव मुक्त बनते हैं, कंप्लीटली। क्योंकि जब हम तनाव में आ जाते हैं तो हम कुछ कुछ शब्द भूल जाते हैं, कुछ कुछ वर्ड्स भूल जाते हैं, फिर हमें आसानी से हम बोल नहीं सकते। फिर हमारा जो डिप्रेशन है वो भी कंप्लीटली चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि मेडिटेशन में जब हम बैठेंगे थोड़ी देर के लिए तो हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, एक्टिवेट होता है ना हमारा ब्रेन। तो ब्रेन जब एक्टिवेट होता है तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे ब्रेन में हम भरते हैं, तो वो हमें टाइम पर याद आता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम बोलने सीखते हैं, बोलना स्टार्ट करते हैं, तो बोलते वो चीज मैं भूल ही गया, मुझे याद ही नहीं आया, अरे ये भी पॉइंट बोलना था, ये भी पॉइंट बोलना था। लेकिन जब हम मेडिटेशन करेंगे थोड़ा 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 तो हमारी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, जहां जो पॉइंट बोलना चाहिए प्रॉपर वही पॉइंट हम बोलेंगे और उसी पॉइंट के अनुसार हम सेशन कराएंगे या फिर हम सीखेंगे, सिखाएंगे भी। बहुत सारी मदद हमें स्मरण शक्ति से होती है। जब हमारी पॉजिटिव ओरा बढ़ता है तो अपनत्व हम फील करते हैं। इसलिए कोई भी लैंग्वेज हमें सीखनी होती है उसका खास करके आज हम जो इंग्लिश के प्रति सीख रहे हैं तो उसके प्रति भी प्यार होना चाहिए। प्यार से उसके जरा हम क्लोज जाएंगे, थोड़ा उसका स्टडी करेंगे तो वो नफरत चली जाएगी उस लैंग्वेज के प्रति। ऐसे नहीं कि मुझे नहीं आएगा, मैं नहीं कर सकता। ये जो नफरत की भावना है वो भावना खत्म होती जाएगी और पॉजिटिव भावना हमारे अंदर क्रिएट होगी कि आएगा, मुझे आएगा, मैं कर सकता हूँ। ऐसे फिर हमारा माइंड जब स्टेबल बनता है तो स्टेबल माइंड से हमारी शक्तियां बढ़ने लगती है। जब शक्तियां बढ़ने लगती है तो आसानी से हम स्पीच कर सकते हैं, हमारी उच्चारण ठीक हो सकते हैं। जो वर्ड हम बोलते हैं हमारा हर वर्ड मॉडिफाई बनता है। हर वर्ड बोलने का तरीका एक अलग अलग तरीका होता है ना। बोलते तो बहुत सारे लोग हैं दुनिया के अंदर, पर कहाँ क्या बोलना है, कहाँ किस भाषा को कौन से शब्द को यूज करना होता है, क्योंकि शब्द भी एक शस्त्र है। इसलिए महाभारत में कहा है कि वो शस्त्र इतने काम नहीं करते जितने शब्द रूपी शस्त्र काम करते हैं। शब्दों के घाव जल्दी नहीं भरते हैं, ऐसे महाभारत में भी कहा हुआ है। इसलिए जब हम वो शब्द उच्चारण करते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं तो उसका भाव क्या होता है, उसकी ताकत क्या होती, वो हमारे उच्चारण से अनेकों को पता चलता है। इसलिए हमारा हर वर्ड एक मॉडिफाई वर्ड बनता है। जब हम उसका उच्चारण करेंगे तो वो भाव लोगों के दिल को छू जाता है। इसलिए सिर्फ हम भाषा ही नहीं बोले, लेकिन उस भाषा के साथ हम भाषणा भी दें। क्योंकि भाषा तो हर कोई बोलता है दुनिया के अंदर, वो जरूरी नहीं है, लेकिन भाषा के अंदर जो भाव है, जो फीलिंग्स है, वो दिल तक जाने चाहिए। यदि हम दिमाग के लेवल पर बात करेंगे तो हो सकता है वो दिमाग तक ही जाएगा। लेकिन हम कोई भी चीज यदि दिल से बोलते हैं, अंदर से बोलते हैं, अपने पन से बोलते हैं, तो वो दिल को छू जाता है। इसलिए कोई कोई का लेक्चर हम सुनते हैं, भाषण हम सुनते हैं, या कोई कोई का स्पीच हम सुनते हैं तो बोलते हैं अरे उसके शब्द ऐसे थे, दिल को छू गए।
कैसे छू गए? कैसे छू गए? क्योंकि उसने जो बोला वो दिल से बोला, अंदर से बोला, अपनेपन से बोला। इसलिए हमें जो बोलना है, जो उच्चार करना है, उसके लिए हमारे पास बहुत अपनापन हो। दिल की भाषा, दिल की भाषा को हम यूज करें। जो भी बोले वो दिल से बोले, अंदर से बोले, विथ फीलिंग के साथ हम बोले, महसूस करके बोले, तो हमारे जो शब्द है, हमारी जो भाषा है, वो दिल तक छू जाएगी। और जब हम मेडिटेशन करेंगे तो हम सेल्फ कॉन्सेंट्रेट बनते हैं। हम डाइवर्ट नहीं हो सकते यहाँ वहां इधर उधर। भले 10 आवाज मेरे कानों में आएंगे, 10 लोग मुझे डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन जब हम मेडिटेशन सीखते हैं, मेडिटेशन से हम सेल्फ कॉन्सेंट्रेट होते हैं कि नहीं मुझे ये करना है, और अपना ही रोल हम परफेक्ट निभा सकते हैं, एकदम परफेक्ट। कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। जो मुझे करना है वो मैं करूंगा, करूंगी। उसके लिए कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, भले होगा भी तो भी नहीं होगा। जैसे अपना कंसंट्रेशन हम बढ़ाएंगे तो हम खुद के ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे, और खुद के ऊपर एक कमांड आ जाती है, और जिस कमांड के द्वारा हम अनेकों के ऊपर प्रभुत्व कर सकते हैं, अनेकों को अपना बना सकते हैं। भाषा ही तो माध्यम है जो अनेकों को अपना बना सके। भाषा के द्वारा ही तो लोग अपने बनते हैं, शब्दों के द्वारा ही तो कोई दुश्मन भी बनता है, तो कोई दोस्त भी बनता है। इसलिए जो शब्द हम उच्चारते हैं, जो भाषा हम बोलते हैं, उसके प्रति एक कमांड होनी चाहिए। जो कोई बहुत अच्छा बोलता है तो बोलते अरे उसकी कमांड है, इंग्लिश पर कमांड है, ऐसे बोलते हैं ना हम। तो वो कमांड तक हमें जाना है। ऐसी कमांड अपने आप में लानी है कि न केवल हम अपने तक रहे, लेकिन हमारे द्वारा हम अनेकों तक पहुंचे, अनेकों को हम आसानी से ये सब सिखा सके। ये हमारा भी एक अलग कर्तव्य है, और उसी कर्तव्य के प्रति भी हम जागरूक हो सकते हैं इसी मेडिटेशन के द्वारा। फिर जो उच्च विचारों की श्रृंखला हमारे अंदर क्रिएट होंगी, तो उसी उच्च विचारों की श्रृंखला के द्वारा हमारा हर उच्चारण, हर शब्द, हर प्रोनाउंसिएशन एकदम परफेक्ट हो सकता है। हमारे प्रोनाउंसिएशन से कहीं भी, कभी भी किसी के भी भावना को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते, दुख नहीं दे सकते। हर कोई हमारे शब्दों से, हमारी भाषा शैली से हर कोई खुश हो सके, सुखी हो सके, शांत हो सके। जैसे कोई कोई बहुत डिप्रेशन में आपके सामने आता है और हम बोलते हैं जस्ट रिलैक्स, तो आपका रिलैक्स शब्द जब वो दिल से निकलता है, अंदर से निकलता है, तो वो सामने वाला कितना भी डिप्रेस क्यों ना हो, वो भी कुछ मिनट के लिए क्यों ना हो, वो खुद भी फील करता है कि नहीं मुझे भी रिलैक्स रहना है, मुझे भी एकदम शांत रहना है। ऐसे तो हमारी भाषा कैसा इफेक्ट करती है अनेकों के लिए। इसलिए हम जो शब्द उच्चारण करेंगे, उस उच्चारण में भी एक ताकत आ जाएगी। तो उसी ताकत के आधार से, हमारे वाइब्रेशन से ही, हमारे अंदर की ताकत से ही हम सामने वाले के विचारों को नॉर्मल कर सकते हैं, उसके फीलिंग्स को हम चेंज कर सकते हैं। क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे अंदर एंडोर्फिन हार्मोन क्रिएट होते हैं, हैप्पी हार्मोन क्रिएट होते हैं। इसलिए हम अंदर से दुखी है और हम बाहर से सिर्फ बोल रहे हैं, इफेक्टिव नहीं होगा, उसका इफेक्ट इतना नहीं होगा। पर हम अंदर से हैप्पी हैं, अंदर से खुश हैं, तो हम अनेकों को जब हम वो लैंग्वेज सिखाएंगे या बोलेंगे, या जो भी हम शब्द उच्चारण करेंगे, तो वो अनेकों को हैप्पी करेंगे। इसलिए जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन के जरिए हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, और इसी हैप्पी हार्मोन्स के द्वारा हम अनेकों को भी खुश कर सकते हैं, अनेकों को भी हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। इसलिए जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन के द्वारा अपना जो एम है, जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य के प्रति हम अवेयर रहते हैं। हमारा एक टारगेट रहता है कि नहीं मुझे ये करना है, वो चीज मुझे करनी है, तो लक्ष्य के प्रति हम अवेयर हो जाते हैं। तो मेडिटेशन हमें बहुत बहुत फायदे मेडिटेशन के होते हैं। कभी कभी हम जो लैंग्वेज बोलते हैं, जो भाषाएं हम बोलते हैं, तो हमें कभी कभी दूसरों के भाव समझ में नहीं आते, तो हम बोलते हैं कि अरे उसका भाव ही समझ में नहीं आया मुझे,
लेकिन जब हम मेडिटेशन सीख जाएंगे, ध्यान सीख जाएंगे, तो इस मेडिटेशन के द्वारा हम अनेकों के भाव को भी यथार्थ रीति से समझ सकते हैं, उसकी गहराई में जा सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं ना, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो, ये फेमस है। तो कम बोले माना कम शब्दों में हम अनेकों की भावनाओं को समझ सके। जहां हमें 10 शब्द बोलने की जरूरत होती है, वहां एक शब्द ऐसा काम करके चला जाएगा, उसकी गहराई को भी आप समझेंगे और आपकी मन की गहराई को भी वो समझ जाएगा। इसलिए मेडिटेशन हमें बहुत मदद करता है इन सभी चीजों में। तो फिर भावों को यदि हम समझ जाएंगे तो हम अनेकों के भावनाओं को समझ जाएंगे। और जैसे जैसे हम मेडिटेशन सीखेंगे, मेडिटेशन की विधि को अपनाएंगे, तो हमारे अंदर दो वैल्यूज क्रिएट होंगी। पहली वैल्यूज, एक तो माफ करना और दूसरी माफी मांगना। दोनों भी बातें हमारे अंदर आ जाएंगी, फॉरगॉट एंड फॉरगिव, दोनों भी चीजें। क्योंकि ये दोनों भी चीजें यदि हमारे पास होंगी तो हम अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जहां कहीं हमारी गलती हो वहां हम माफी मांगकर उनके भी माइंड को रिलैक्स करें और अपने भी माइंड को हम रिलैक्स करें। और कोई से गलती होती है तो हम भी उसको बड़े दिल से क्षमा करें, माफ करें। हम उनको भी माफ करेंगे और हम भी माफी मांगेंगे अपने लाइफ में, तो हमारा माइंड रिलैक्स रहेगा, शांत रहेगा। या फिर हमारे इस आध्यात्मिक भाषा में हम उसको कहते हैं कि हमारे बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स को हम चुकता करेंगे। क्योंकि बहुत सारे अकाउंट्स आपस में बनते हैं, कोई गलतियां हम करते या हम किसी को दुख देते हैं, तो जब हम किसी को दुख देते हैं तो नेचुरली उसके प्रति जो बद्दुआएं हमें मिलती है, तो हमारा आपस में एक कार्मिक अकाउंट बनता है। और इसी कार्मिक अकाउंट को यदि हमें खत्म करना है कि ना कोई मेरे प्रति बुरा सोचे, ना मैं किसके प्रति बुरा सोचूं, ना मैं किसी को बद्दुआ दूं, ना वो मुझे बद्दुआ दे, और इसी फीलिंग को हमें बचाना है, सेव करना है, तो हम अपने अंदर दो क्वालिटीज को बढ़ा सकते हैं। और वो बढ़ती है मेडिटेशन से, क्षमा भाव, क्षमा करना, दोनों भी चीजें। फिर जब हम किसी को सुनाते हैं तो सिर्फ सुनाने की ताकत नहीं, पर सुनने की भी क्षमता हमारी बढ़ती है मेडिटेशन से। कभी कभी हम बोलते हैं ना, मुझे तो बोर होता है उनका सुनना, कितना बातें करते रहता है वो, कितना बोलता रहता है वो। तो कोई व्यक्ति हमारा सुने, हमें अच्छा लगता है, पर हमें जब सुनने की बात आती है तो बोलते हैं अपनी कैपेसिटी नहीं, हम इतना नहीं सुन सकते। लेकिन नहीं, परमात्मा हमें सिखाते हैं कि जब हम मेडिटेशन करेंगे तो हमारे पास ये भी कैपेसिटी आती है सुनने की, लिसनिंग पावर हमारी बढ़ती है। और ये पावर जब हम बढ़ती है तो हम किसी के भी माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं ऐसे। फिर हमारा माइंड जब स्थिर बनता है, स्टेबल बनता है, तो हमारा एक अलग व्यक्तिमत्व बनता है, संतुलित व्यक्तिमत्व बनता है। क्योंकि हमारी आंखें, हमारा मुख, ये सब पता चलता है इससे कि हम कैसे हैं। यदि हम अंदर से अशांत है, हमारी आंखें बताती हैं, हमारा चेहरा बताता है। लेकिन जब हम मेडिटेशन करेंगे तो हमारी आंखें भी स्थिर होती है, हमारे चेहरा में भी फ्रेशनेस रहता है। तो हमारी ये जो फेस है, एक इंडेक्स है, दर्पण है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन के द्वारा हमारे जो पूरे यहाँ जो नैनेन्द्रियां हैं, इंद्रियां हैं, वो पूरे की पूरे कॉन्सेंट्रेट होते हैं। और जब ये पूरे कॉन्सेंट्रेट होते हैं तो हम एक अलग व्यक्तिमत्व हमारा बनता है। इसलिए आंखों के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे चेहरे के द्वारा लोग हमारी पर्सनालिटी को जानते हैं। इसलिए जब हम मेडिटेशन करेंगे तो हमारे अंदर में एक संतुलन आता है, बैलेंस आता है। और जब हमारे अंदर ये बैलेंस आता है तो हम अनेकों के लिए एक मार्गदर्शक बन सकते हैं। इसीलिए, और हमारी इनर पर्सनालिटी जब सुंदर बनती है तो नेचुरली हम जो बोलेंगे, हम जो उच्चारण करेंगे, वो हर वर्ड हमारा नेचुरली सुंदर होगा, नेचुरली इफेक्टिव होगा। इसलिए ऐसे बोलते हैं ना, शॉर्ट और स्वीट, कम बोलो बट स्वीट बोलो, अच्छा बोलो। जरूरी नहीं है बहुत लंबा चौड़ा हम बोले, जो बोले ठीक बोले और स्वीट बोले,
ऐसे स्वीट बोले कि अनेकों के दिल को हम जीत सके, दिल पर राज्य कर सके, अनेकों के दिल पर। और वो भाषा से ही होता है, वो उच्चारण से ही होता है। इसलिए मेडिटेशन में ये बहुत सारे फायदे हैं। फिर हम डर से भी मुक्त हो सकते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इतनी सारी विशेषताएं हैं। उसके साथ साथ कुछ वैल्यूज भी हमारे अंदर चाहिए, जैसे मधुरता है, नम्रता है। मधुरता के साथ साथ हमारे अंदर समर्पणता भी होनी चाहिए। ये जो सारे वैल्यूज है, क्योंकि हमें बहुत कुछ आता है लेकिन हमारी लैंग्वेज में रफ है, रफनेस है। हम रफली किसी के साथ बात करते हैं तो वो भी इफेक्टिव नहीं होता है। लेकिन जब हम मेडिटेशन सीख जाएंगे या करेंगे रोज थोड़ा थोड़ा थोड़ा, तो वो मधुरता हमारे अंदर आती है। और मधुर भाषा अनेकों को आकर्षित करती है, खींचती है अनेकों को। इसलिए जैसे बोलते हैं ना कि दुनिया के अंदर की कोई जब ऐसे गलत बोलता है या अपमानजनक शब्द बोलता है, तो उस शब्द को भी लोग नहीं भूलते हैं। लेकिन कोई जब मधुर बोलता है, कोई दुआ देता है, कोई ब्लेसिंग देता है, तो वो शब्द भी हम जिंदगी भर नहीं भूलते। इसलिए तो हमारे संस्कृति में एक प्रथा है, जब हम बड़ों के पांव छूते हैं तो आज भी हमारे बड़े हमें ब्लेसिंग देते हैं, आयुष्मान भव, सुखी भव, ऐसे वरदान देते, ब्लेसिंग्स देते हैं। और वो ब्लेसिंग हमें याद रहते हैं, जिंदगी भर याद रहते हैं, क्योंकि मधुरता भी बहुत जरूरी है। रफ रफली बोलना जरूरी नहीं है, लेकिन मधुरता भी होनी चाहिए, क्योंकि मधुरता ही अनेकों के दिल को जीत सकती है। फिर हमारे अंदर उत्साह भी होना चाहिए। जब हम बोलते हैं, जो भाषा हम बोलते हैं, वो बोलते समय हमारे अंदर एक स्पिरिट होना चाहिए। ऐसे नहीं हम बोल तो रहे हैं लेकिन हमारे अंदर ही एक ऊर्जा नहीं है, हमें ऐसे जबरदस्ती बोल रहे हैं, ऐसे ही हमारे शक्ल पे वो खुशी नहीं है, उमंग नहीं है, तो इफेक्टिव नहीं होगा। इसलिए जब हमें अपनी भाषा को, अपने उच्चारण को, अपने प्रोनाउंसिएशन को यदि हमें परिवर्तन करना है, तो हमारे अंदर उमंग उत्साह भी बहुत जरूरी है। हम हमेशा ऐसे रहे कि हम उमंग वाले, उत्साह वाले। जैसे हम हमारे गॉड गॉडेज को मानते हैं, तो हम जब उनको देखते तो हमें कैसा लगता है, कैसा फील करते हैं हम। कोई टेम्पल में हम जाते हैं या फिर कहीं और जगह हम जाते हैं, तो बोलते हैं कि ऐसी वो मूर्ति थी, उसको देखते बराबर दिल खुश हुआ, ऐसे हम बोलते हैं। तो उनकी जो उमंग, उनका जो उत्साह, उनके चेहरे पर जो एक अलग प्रकार का आनंद है, उसको देखते बराबर हम खुश होते हैं। ऐसे हम भी बचपन में जब स्कूल में जाते थे, तो कोई कोई टीचर को देखते बराबर हमें खुशी मिलती थी, या कोई टीचर का क्लास हमें अच्छा लगता था, तो बोलते थे अरे नहीं वो टीचर आएगा, तो हमें भी अंदर से वो खुशी होती थी। ऐसे हम बने, ऐसे हमारे शब्द हो, ऐसे हमारी भाषा शैली हो कि जिसके द्वारा लोग उत्साहित हो, आनंदित हो, उनके जीवन में भी वो खुश हो। और जब वो उनकी खुशी बढ़ेगी, तो नेचुरली हमारी भी खुशी बढ़ेगी। इसलिए मेडिटेशन के बहुत 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 सारे फायदे हैं। शरीर के लिए भी फायदे हैं, हमारे माइंड के लिए भी फायदे हैं, और समाज के लिए भी फायदे हैं, फैमिली के लिए भी फायदे हैं। बहुत सारे हैं फायदे की बातें तो हमने सुनी है, लेकिन हमें ये करना है, हमें इसकी टेक्निक को अपनाना है। इसीलिए जब हमें टाइम मिले तो हम राजयोगा मेडिटेशन का जो कोर्स होता है 7 डेज का, ब्रह्मा कुमारीज में जो देते हैं, हम अवश्य टाइम निकाल करके हम उसे करें। वो भी ऑनलाइन हम कर सकते। अभी आपके आजू बाजू में कहाँ ब्रह्मा कुमारी विद्यालय होगा तो आप अभी तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि समय ऐसा है, कोरोना का, लॉकडाउन का समय चल रहा है। लेकिन हम ऑनलाइन ये कोर्स हम कर सकते हैं कि जिसके द्वारा हम अपने माइंड को पावरफुल बना सकते हैं, क्योंकि इसको रोज रोज करना होता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, हमें रोज करना है इसको। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अभी तो हम सुन रहे हैं, इसकी झलक, इसकी ट्रायल, उसको कैसे करना है, किस तरीके से उसको करना है, ये हमें पता नहीं है। और उस तरीके को हमें सीखना है, उस विधि को हमें सीखना है। और उस विधि को सीखने के लिए हम ये 7 डेज का कोर्स कर सकते हैं। ये विनामूल्य है, कोई फीस इसकी नहीं है, बस आपका समय ही हमारी फी है। क्योंकि ज्यादातर यही आंसर हमें मिलता है कि हमें टाइम नहीं है,
हम नहीं कर सकते, हमारा शेड्यूल बहुत बिजी है, लेकिन हमें टाइम निकालना है, खुद के लिए निकालना है, क्योंकि जब हम बदलेंगे तो हमें देखकर हमारा घर बदलेगा, जब हमारा घर बदलेगा तो हमारा समाज बदलेगा, और एक ऐसे समाज को हम क्रिएट कर सकते हैं जहां सब स्ट्रांग है, शक्तिशाली है, क्योंकि परिस्थितियां, चुनौतियां दिन प्रतिदिन तो बढ़ती जा रही है, कम कहाँ हो रही। हम देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर डिप्रेशन के नए नए रीजन्स हैं, दुनिया के अंदर तनाव के नए नए रीजन्स बढ़ रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें? ऐसे सिचुएशन में हम अपने मन को स्ट्रांग बना सकते हैं। यही एक उत्तर है कि मन को बदलो तो सब बदल जाएगा। स्थिति बदलेगी तो परिस्थिति बदलेगी। आज हम देखते हैं कि परिस्थिति से स्थिति बदल रही है। परिस्थिति गंभीर है, मन भी गंभीर हो रहा है। परिस्थिति डराने वाली है, मन भी डर रहा है। तो डरने के कारण भी आज हम देखते हैं कई कई बीमारियां और बढ़ रही है। लेकिन हम अपने मन को यदि स्ट्रांग बनाना सीख जाएंगे तो हम इन सारी परिस्थितियों को भी हम जीत पाएंगे, काबू पाएंगे। और हमारा मन यदि स्ट्रांग बनेगा, अपना फ्रेंड बनेगा, इस भटकते हुए मन को हम परमात्मा में लगाएंगे तो हमारा आचरण, हमारा उच्चारण और हमारा जीवन बहुत 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 ऊंचा बन सकता है। और इसी शुभ भावना के साथ हम थोड़ी सी झलक हम मेडिटेशन की यहाँ देना चाहेंगे। हम एक जस्ट 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे, इसलिए मैं सबको नम्र निवेदन करती हूँ कि आप जहां भी हो, जैसे भी बैठे हो, अपने बॉडी को कंप्लीटली रिलैक्स करें, अपने माइंड को भी रिलैक्स करें। रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाइए। चेयर पर बैठे हो, नीचे बैठे हो, सोफा पे बैठे हो, जहां भी बैठे हो, हम फील करें मैं रिलैक्स हूं। मेरा संपूर्ण शरीर रिलैक्स है। हम धीरे धीरे अनुभव करें मेरे संपूर्ण बॉडी हैप्पी एंड रिलैक्स है। मेरा मन मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। जिस परमेश्वर ने, जिस ईश्वर ने मुझे मन रूपी गिफ्ट को प्रदान किया है, आज मैं सबसे पहले उस देने वाले दाता का शुक्रगुजार हूं। हम मन से, दिल की गहराई से उस ईश्वर का शुक्रिया अदा करें। अपने इस मन को एकदम रिलैक्स बनाए। मेरे मन के अंदर कोई भी डर नहीं है। मेरा मन निर्भय है, शक्तिशाली है। और मेरा प्रोनाउंसिएशन हाई क्वालिटी का है। ऐसे लैंग्वेज मैं सीख रहा हूँ, सीख रही हूँ, जो अनेकों को दिल को छू सको। मेरे उच्चारण इतने फर्स्ट क्लास है, जो अनेकों को मैं खुशी और स्टेबल बना सकूं। मैं कैपेबल पर्सन हूँ।
मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरा डर कंप्लीटली निकल गया है। मैं खुश हूँ। रिलैक्स हूँ, शांत हूँ। मेरे अंदर के विचारों की श्रृंखला बहुत पावरफुल हो रही है। जैसे मेरे विचार पावरफुल है, ऐसे ही मेरे उच्चारण की क्वालिटी एकदम बढ़िया बन रही है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू सर। Thank you, ma'am. Thank you very much. आप सबका थैंक्स, आपने हमें इतना अच्छा समय दिया राजयोग सिखाने के लिए। सर आपका थैंक्स। Thank you, ma'am. आपने हमारा इनविटेशन स्वीकार किया और हमारे जो फ्यूचर टीचर्स हैं उनको सही मायने से अपने मेडिटेशन, स्पिरिचुअल पावर और जो अपना व्यवहार है, उच्चारण है, इसके बारे में बहुत सारा ज्ञान देने के लिए आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं अपने ही पार्टिसिपेंट कविता मैम आर यू देयर? कविता कमल मैम? Yes, sir, I'm there. Okay, I request you please propose vote of thanks on behalf Yeah, of sure, ma'am. Sure, sir. every Sure. participants. Okay, over to you. Yeah, thanks a lot, sir. But before concluding, I would like to ask 2-3 questions which I have in mind. Yes, ma'am. Ma'am. Why not? I actually means you can use either Marathi or Hindi. Yeah, No sure, problem. sure. Yes. Okay, ma'am. I request every participants, if you have any doubts regarding meditation and learning of English language, you may directly ask questions to Honorable Asha Behenji, and definitely she will answer your questions. Or dear participants, if you have any doubt, you may Yeah. ask. Yeah, may I? मैं शुरू करूँ? Yes, हाँ ma'am. जी, Yeah, thank you. आशा दी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। आप जब बोल रहे थे 2-3 मेरे सवाल दिमाग में आए थे तो मैंने नोट डाउन किया था, तो वन बाय वन मैं आपसे पूछती हूँ। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बोला था कि फॉरगिव एंड फॉरगेट। तो हाँ जी, अभी जैसे आप लोग मटेरियल लाइफ में जीते हैं कि जी, समटाइम्स इट बिकम्स कभी-कभी ये बहुत मुश्किल होता है कि फॉरगिव एंड फॉरगेट करना। या, या, इसको ईज़ी कैसे करें हम लोग? फॉरगिव एंड फॉरगेट को ईज़ी कैसे करें जिसको हम लोग अपना एक रूटीन का एक हिस्सा बना सकें? अच्छा। तो कोई-कोई बातें ऐसी होती है कि उसको भूलने से या फिर उसको क्षमा करने से ही दिल को सुकून मिलता है। भले वो बात बड़ी है या फिर कोई बड़ा हादसा हमारे साथ हुआ या कोई बड़ी सिचुएशन उनके कारण हमारे लाइफ में आई है, लेकिन उसी बात को यदि हम पकड़ के भी रखेंगे, तो क्या फ़ायदा है? सही हाँ, है। मन में रखेंगे भी, चलो मैंने किसी के प्रति दुश्मनी रखी भी, उसको हाँ, माफ़ी नहीं किया मैंने, तो तकलीफ मुझे होगी, उसको तो नहीं होगी। तो अगर मुझे सुख से जीना है या फिर मुझे शांति को फ़ील करना है, तो मुझे माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से भी हम माफ़ कर सकते हैं और माफ़ी माँगने के लिए भी हमारे पास बड़ा दिल होना चाहिए, क्योंकि यदि हम माफ़ी माँगेंगे, तो वो भी रिलैक्स रहेंगे और हम भी रिलैक्स रहेंगे। हाँ, सही है। अ, और एक हाँ, क्वेश्चन आशा दी। हाँ जी।
अपना जी। मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ, इसमें हम्म, कभी कभी क्या होता है कि अपना मटेरियल लाइफ स्पिरिचुअलिटी पे भारी पड़ता है। जी। तो फिर अभी मुझे, हाँ, आई एग्री कि इटर्नल ट्रूथ है, स्पिरिचुअलिटी हम्म, कहो या ऑलमाइटी कहो, दिस इज इटर्नल ट्रूथ है ये। जी। लेकिन फिर आप इस स्पिरिचुअल लाइफ को या हम्म, मेडिटेशन को हमारे हम्म, लाइफ में प्रायोरिटाइज कैसे करें, इसको ज्यादा प्रायोरिटी दे कि इसको फर्स्ट लेवल पे कैसे लाके रखें। हाँ, उसके लिए मैंने यही एक सिंपल सा टेक्निक आपको बताया था कि जब हम सवेरे उठते हैं, कुछ-कुछ हाँ टाइम फिक्स करिए, जैसे मॉर्निंग में उठते बराबर या सेकंड टाइम खाना खाते समय या थर्ड हाँ टाइम हम जब सोते हैं। ये 3 हाँ टाइम ऐसे हम फिक्स करें, इसमें हम 5-5 मिनट्स दे सकते हैं मेडिटेशन के लिए। हाँ एकदम ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा काम छोड़ के उस समय बैठ जाएँ, लेकिन हम हाँ कुछ टाइम अपने लाइफ में ऐसे बना लें कि उस समय मुझे ईश्वर का शुक्रिया अदा करना है या उसका थैंक्स करना है। या फिर जब मैं फ्री में बैठती हूँ, समझो तो जब मैं रिलैक्स बैठी हूँ तो मैं फ़ील करूँ मैं रिलैक्स हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं दुनिया की सबसे लकी पर्सन हूँ। ऐसे कुछ पॉज़िटिव थॉट्स अपने नोटबुक में हम लिख सकते हैं। कुछ हाँ संकल्प और जब टाइम मिले तो बस हम उसको मन ही मन में रिपीट करें, तो हो ओके। सकता है, कोई मुश्किल नहीं है ऐसे। हाँ इसलिए अच्छा। स्पिरिचुअलिटी के लिए हमको कोई लाइफ छोड़नी नहीं है, मटेरियल लाइफ वो करते हुए हमें स्पिरिचुअलिटी को अपनाना है। हम बर्तन हाँ भी मांज रहे होते हैं ना ताई, तो भी हम कर हाँ सकते हैं। हम कपड़ा भी धो रहे होते हैं ना, तो भी कर सकते हैं। खाना भी बनाते इधर-उधर के विचार तो हम करते ही है ना, इसके, उसके, उसके, उसके। हाँ हाँ बजाय हाँ हम थोड़ा स्पिरिचुअल विचार करें। अच्छा। हाँ, और एक थर्ड एकदम हाँ क्वेश्चन, जी, हाँ। और एक थर्ड क्वेश्चन मैम, अभी ऐसे मुझे पता नहीं, मतलब मैंने सुना था कि हुँ, ये मैं आपको पूछना चाहती हूँ एक्चुअली कि मेडिटेशन से, जिसे हम लोग इनकारनेशन या रीबर्थ बोलते हैं, पुनर्जन्म भी बोलते हैं, तो मेडिटेशन करने से ये री इनकारनेशन, रीबर्थ, पुनर्जन्म होता हुँ। है या नहीं होता है, इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, नहीं, या फिर मेडिटेशन करने से पुनर्जन्म की बात यहाँ पे ये बताई जाती है कि आध्यात्म में कि जब हम हाँ मेडिटेशन करते हैं तो हम बुराइयों से बचते हैं और एक हाँ अच्छी जर्नी, एक अच्छा लाइफ हम जीते हैं। तो एक नया जन्म ही उसको बोलते हैं क्योंकि कुछ-कुछ लोग बहुत व्यसनी होते हैं, गलत कर्म करने वाले होते हैं, उनका पहले वाला लाइफ अलग ही टाइप का होता है। लेकिन जैसे हाँ वो मेडिटेशन आरंभ करते तो उनके लाइफ से ये सारी बातें चली जाती, तो वो लोग बोलते ही भी मेरा एक नया जन्म हुआ है मेडिटेशन से, ऐसे। अच्छा अच्छा। अच्छा, हाँ, ऐसे। ओके। थैंक्स अ ओके, लॉट। बहुत बहुत ओके। शुक्रिया। मुझे ऐसे लग रहा है सच में, सर ने मुझे बोला भी कि मैं कंक्लूड करूं, वोट ऑफ थैंक्स दूं, लेकिन मुझे आशा दी सच में ऐसे लग रहा है कि आज ऐसा ऐसे आप आज हमें मिले, एक तरह से आपके आशीर्वाद ही हमें मिले। नहीं, भगवान के आशीर्वाद आपके साथ है, मैं भी तो एक ईश्वर की संतान हूँ, कोई आपसे ईश्वर बात की करके, एंड विजय कुमार सर, मैं आपसे बहुत लिटरली सर, यू आर फैसिनेटेड अस कि इतने सच में इतने सारे लेक्चर्स आपने रखे, आज आशा दी को भी बुलाया। कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम लोग बीएड लेक्चर्स में ऐसे भी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में कभी सुन सकते हैं। यस यस कविता जी, आजकल तो थैंक्स। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जो है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और हाँ, मटेरियलिस्टिक लाइफ से हमें स्पिरिचुअल की ओर बढ़ना चाहिए क्योंकि हाँ जीवन का महत्व हमें आज आशा जी ने बताया है और हम आशा बहन का बहुत शुक्रगुजार है क्योंकि ये प्लान ऑफ आत्मा ही कह सकते हैं कि इतने सारे टीचर्स को आशा बहन जी मिली और उन्होंने बहुत सारा मेडिटेशन के बारे में बताया। ये भी उनका ही प्लान है, ईश्वर का प्लान या है, वही, और परमात्मा एक का तरह प्लान से यस, इनके यस, आशीर्वाद यस। ही हमें मिले, अच्छे टीचर बनने के लिए आपका आशीर्वाद ही है, मैं तो बोलूंगी। नहीं, नहीं, हमारा भी मेरा भी है और परमात्मा का भी आशीर्वाद आपके साथ है। आपका एक बहुत अच्छी एक न्यू बिगिनिंग होगी और ईश्वर हमेशा आपके साथ है, रहेगा क्योंकि ये मिलना भी एक भाग्य की बात होती है। है। यस हाँ, यस यस, आप एटलीस्ट लकी हो, बहुत लकी हो। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू एक थैंक यू। एक Carolyn sir, can I? यस, Carolyn sir, हाँ sir, Anita here. हाँ या Anita ma'am, you want to ask question? Sir, Please I ask am question. yes. I'm as I told you, I'm driving, but I couldn't control myself.
in turning on the हाँ, speaker थोड़ा और सा आशा जी से हिंदी बात में करने के थोड़ा लिए। सा हाँ हिंदी में हाँ, बात कीजिए। ओके। हाँ, मैं आशा जी से अनिता, बात करने के लिए सोचा कि स्पीकर ऑन करके मेरे मतलब इतना अच्छा लेक्चर हुआ कि आई एम टोटली, मैं रिलैक्स हूँ। गाड़ी चलाते वक्त भी, नहीं तो हमेशा मुझे डर लगा रहता है कि इतना बड़ा डिस्टेंस कैसे कवर करूँ, अच्छा। ट्रैफिक में कैसे। लेकिन आपकी मेडिटेशन में ड्राइविंग करते वक्त आई वाज मेडिटेटिंग, लाइक ओके, एक वाओ। कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया है। आपने जिस तरह से बताया कि माइंड एंड बॉडी का अच्छा होना कितना जरूरी है। सिर्फ बहुत फिजिकल जरूरी है एक्टिविटी या एक्सरसाइज करने से जी। आदमी फुल नहीं होता है, कंप्लीट नहीं होता है, पूर्ण नहीं होता है। इसके लिए माइंड का स्वस्थ होना भी जरूरी है। जी। तो थैंक यू आशा जी, थैंक यू आने के लिए। और पटोले सर, एज आई एवरी टाइम से, a fantastic selection of all the honorable speakers. Fantastic selection. थैंक यू मैम, ये Thank हमारे you. Thank you, sir. नसीब में था। Thank you. थैंक यू। और कोई पूछना चाहता है? और किसी के प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। एनीबडी फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स? आई थिंक आपने बहुत सारा ज्ञान हमारे बच्चों को दे दिया है और हमारे बच्चों को 11:30 बजे उनको दूसरा क्लास ज्वाइन करना है। ओके 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 सर। ओके। तो मैं आई रिक्वेस्ट कविता मैम, प्लीज प्रपोज वोट ऑफ थैंक्स। Yes, कविता sir. मैम। Yes, sir, I'm here. Yes, आशा जी आप यहाँ पे आए आज, हमें बहुत अच्छा आपने गाइडेंस किया है कैसे हमारे लिए सोल, माइंड, बॉडी को एक साथ रख के कैसे अपने स्पिरिचुअल लाइफ में, मटेरियल लाइफ में आगे कैसे जाना है। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई। जो मेरे क्वेश्चन थे वो भी आपने डाउट्स मेरे क्लियर किए। अब मैं बहुत खुश हूँ। एक तरह से लेक्चर में आके आज हम सबको आशीर्वाद दिए आपके आपके रूप अतर रूप से परमात्मा के भी हमें आशीर्वाद मिले। जी। मुझे बहुत खुशी है कि आज आप आए, हम सबको इतना अच्छा गाइडेंस किया, फ्यूचर टीचर्स को गाइडेंस किया। वी आर रियली वेरी लकी एंड आई रियली वेरी हैप्पी टू हैव यू हियर। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू विजय कुमार सर। आई थैंक ऑल द पार्टिसिपेंट्स। सबने ज्वाइन किया, सबको बहुत सारी अच्छी ज्ञान की बातें मिले। मैं रियली मैम, आशा दी मैम, मैं जरूर कोशिश करूंगी कि मैं मेडिटेशन रेगुलरली कर पाऊँ। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ओके। थैंक्स अ थैंक लॉट यू। एवरीवन। आप सबका थैंक्स। थैंक यू कविता मैम। आशा बहन जी, हम पूरे दिल से आपका मतलब हम थैंक्स कहना चाहते हैं। अपना इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी आपने हमारे बच्चों के लिए टाइम निकाला, उसके लिए मैं आपके पूरे सेंटर का और पूरे जितने ओके जो ब्रह्म कुमारी के मेरे भाई ओके। बहन है उनका भी मैं शुक्रिया या अदा करना चाहता हूँ मैम। थैंक यू वेरी ओके मच सर। वंस अगेन थैंक मैम, यू थैंक यू वेरी मच, वंस थैंक यू। अगेन। ओके ओके ओके। थैंक यू अपना सर। ख्याल रखिएगा। थैंक यू, हाँ थैंक जी यू। हाँ जी हाँ जी। तो ओके आपकी अनुमति से हम ये प्रोग्राम अभी यहाँ बंद करना चाहते हैं, मतलब ओके एंड सर। करना चाहते ओके ओके। हैं। थैंक थैंक यू। यू सर। थैंक यू। ओम थैंक शांति, ओम यू। शांति। ओम शांति।